Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we will learn a very important topic of chemistry, which is types of chemical reaction. This topic is a very important part of your chapter, Chemical Reaction and Equations. This topic is very important for CBSE, ICSE and state board exams. So basically, there are 5 types of chemical reactions. First, combination reaction. Second, decomposition reaction. Third, displacement reaction. Fourth, double displacement reaction. Fifth and last one, redox reaction. So children, let's do it one by one. So first we'll read about combination reaction. As the name itself signifies, combination, meaning here two or more reactants will combine to give a product. Combination मतलब होता है दो चीजों का जुड़ना, या तो एलिमेंट के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं या एलिमेंट कंपाउंड के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं. सो फर्स्ट लेट्स रीड इट्स डेफिनेशन टुगेदर. In a simple language, we can say that when two or more substances, again which could be elements or compounds, combine to form a single product, the reactions are called combination reactions. The reactions are called combination reaction. In other words, we can also say such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. So children, यहाँ पे क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, वो मिलके कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे. So calcium oxide reacts vigorously with water to produce silicate lime. Children, silicate lime is also called calcium hydroxide, releasing a large amount of heat. See here, CaO, which is also known as quicklime, that is calcium oxide. When it will combine with H2O, that is water, will get a new product which is calcium hydroxide, that is slaked lime. It is also called lime water. Along with this, large amount of heat will be released. Children, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. तो जिन भी रिएक्शंस के अंदर हीट का रिलीज होगा, हीट रिलीज होगी, उन्हें कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. याद कैसे रखेंगे? अगेन एक्सो मीनिंग ऐसे याद रखो, एग्जिट एंड एक्सो मीनिंग हीट बाहर निकलेगी, हीट रिलीज होगी. एंड एंडो इज अगेन इनसाइड, मतलब हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट अंदर लगेगी. ठीक है, so there are two types of reaction based on heat, exothermic and endothermic. So this reaction is of course an example of combination reaction, but it will also go under exothermic reaction. Why? Because see here, heat is released. Okay, so quicklime will combine with H2O to give a new product which is calcium hydroxide, also called lime water or slaked lime. So always remember this example. This is a very good example of combination reaction. Now let's see some other reactions. First one is burning of coal. We denote coal as a coke, carbon, C, solid. When it will combine with oxygen gas, we'll get a CO2 gas. So see here, carbon is first element, oxygen is another element. Since it is a gas, it will be in the form of O2. When these two will combine now, we'll get a new product which is carbon dioxide, which is of course a compound. See here, formation of water. Again, H2 and O2 both are elements in their gaseous form, H2 and O2 form. When these two, H2 and O2 will combine, we'll get a new product, H2O, which is water. So here also you can see there are two reactants, one product. Two reactants, one product. So two reactants will combine to give a single product. That's why it is a combination reaction. I hope it is clear. So now let's move to our second reaction, which is decomposition reaction. Again, here also, the name itself signifies decomposition, meaning decompose, that is to break down. Here, let's first read this definition, then I'll explain. In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. This is a decomposition reaction. The decomposition reaction requires energy, either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants.
क्या समझा हमने, यहाँ पे जो रिएक्टेंट होगा क्या होगा, वो सिंगल रिएक्टेंट होगा, मतलब एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकडाउन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट ये डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में होगा, डिकम्पोजिशन ऐसे नहीं हो सकता चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स फॉर दैट वी नीड सर्टेन कंडीशंस, एंड दीज कंडीशन आर व्हिच यू ईदर नीड हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अगर डिकम्पोजिशन हीट की वजह से हो रहा है तो देन इट विल बी कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर लाइट की वजह से हो रहा है, लेट्स से सपोज सनलाइट, तो वो होगा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन कराने की वजह से हो रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स, फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, थर्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। हम लोग सारे के एग्जाम्पल्स देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन पे। See here, ferrous sulfate when heated will give ferric oxide, SO2 and SO3 gas। यहाँ पे देखो एक रिएक्टेंट है, इसमें हमने हीट पास कराया, मतलब हमने थर्मल डिकम्पोजिशन कराया, तो हमें तीन प्रोडक्ट मिले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो एक रिएक्टेंट से तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मतलब यहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है रिएक्टेंट का, तभी तो तीन हमें मिल रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें भी कौन सा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ जो FeSO4 है ना बच्चों, इसका कलर होता है ग्रीन अगर वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है, मतलब FeSO4 के साथ 7H2O लगा है तो वो ग्रीन कलर का होगा। और जब हम लोग FeSO4.7H2O को हीट कर देंगे, मतलब उसे एनहाइड्रस कंडीशन में ले आएंगे, तो बन जाएगा FeSO4, वो होगा व्हाइट कलर का। और फर्दर जब हम लोग व्हाइट FeSO4 को, दैट इज एनहाइड्रस FeSO4 को हीट करेंगे, तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिलेगा जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। सो कलर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे दो गैसेस भी रिलीज हो रही है, SO2 SO3। इनका कैसा ऑर्डर होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक बर्निंग सल्फर की तरह इनका ऑर्डर होता है, ठीक है। इनमें स्मेल आती है जैसे कि कोई सल्फर जल रहा हो वैसा। तो ये रिएक्शन बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आप कह लो तो वन ऑफ द फेवरेट रिएक्शन है, जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। और इसमें काफी चीज भी, जैसे इससे काफी सारे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। फर्स्ट कि FeSO4 का कलर क्या हो सकता है, तो अगर वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो ग्रीन, एनहाइड्रस फॉर्म में है तो व्हाइट। अब उसको हीट कर दिया हमने, तो ये हमें मिल गया Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। तो ये कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर। और इसके साथ दो गैसेस रिलीज होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इनका स्मेल कैसा होगा, बर्निंग सल्फर की तरह स्मेल होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ऑलवेज रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू कैल्शियम कार्बोनेट विच इज ऑल्सो नोन एज लाइमस्टोन। सो देखो बच्चों, अभी तक हमें तीन प्रोडक्ट कैल्शियम से रिलेटेड आए हैं। पहला तो आया है कैल्शियम ऑक्साइड विच इज नोन एज क्विकलाइम, दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज नोन एज लिक्विड लाइम और लाइम वाटर, और ये तीसरा यहाँ पे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का क्या कह सकते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हम लोग हीट करेंगे, अगेन यहाँ पे कौन सा डिकम्पोजिशन हो रहा है, ऑफ कोर्स थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ हमें क्या मिला, क्विकलाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके साथ साथ एक CO2 गैस भी रिलीज हो। तो यहाँ भी एक रिएक्टेंट था, हीट किया, दो प्रोडक्ट मिले, ब्रेकडाउन हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। So this is also example of decomposition reaction, that too thermal decomposition. Now come to third one, PbNO3 whole twice, that is lead nitrate. When this will be heated, we'll get lead oxide, NO2 gas and oxygen gas. Here also children, two gases will be released, but this nitrogen dioxide gas is very important. Why? This is a ब्राउन गैस, मतलब NO2 का कलर क्या होगा, ब्राउन कलर का। जब भी ये रिएक्शन होगा PbNO3 होल ट्वाइस, दैट इज लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट करेंगे, तो लेड ऑक्साइड तो बनेगा ही और दो गैसेस रिलीज होंगे। पर एक गैस का ना ऐसा ब्राउन फ्यूम्स, तुम्हें ऐसा फील होगा कि ऐसा ब्राउन फ्यूम्स निकल रहा है, ठीक है। तो किसकी वजह से निकल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से निकल रहा है। ये तीनों तो आपको डेफिनेटली याद होने ही चाहिए, बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, बोर्ड्स में भी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। पूरे रिएक्शन कंडीशन के साथ आपको शो करना है कि हाँ ये हीट की वजह से हो रहा है और ये थर्मल डिकम्पोजिशन का पार्ट है, ओके। अब हम देखेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स। फोटोलिटिक क्यों, बिकॉज हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, लाइट
वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है। ये लाइट किस फॉर्म में है, यहाँ पे सनलाइट के फॉर्म पे। तो हमने लिया है AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है बच्चों, व्हाइट। इसमें जब हम लोग सनलाइट डालेंगे, मतलब एक बॉटल में सपोज हमने सिल्वर क्लोराइड लिया है, उसको हमने सनलाइट में रख दिया, तो ये टूट जाएगा सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। तो सिल्वर का कलर कैसा होता है बच्चों, सबने देखा है, ग्रे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हाइट कलर कंपाउंड है वो ग्रे कलर में टर्न हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है सनलाइट की वजह से, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, क्लोरीन गैस की रिलीज हो रही है, ठीक है। गैस को मैं अपवर्ड एरो से शो करता है, मैंने बताया था प्रीवियस वाली वीडियो में। तो जब भी हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो वो टूट जाएगा सिल्वर में और क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। और जो सिल्वर का कलर होता है वो ग्रे होता है, AgCl का कलर होता है वो कैसा होता है, व्हाइट। इसीलिए बच्चों हमेशा कहा जाता है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, इनको सनलाइट से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। अगर आपको ये कंपाउंड एज इट इज स्टोर करना है, डार्क कलर बॉटल्स में स्टोर करना चाहिए। वाई, क्योंकि इसमें फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना हो। आ जाओ AgBr विच इज कॉल्ड सिल्वर ब्रोमाइड। इसका भी कलर होता है, इस कंपाउंड का भी कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो ये भी अगेन टूटता है सिल्वर में, और यहाँ भी गैस रिलीज होती है, ब्रोमीन गैस। अगेन सिल्वर का कलर क्या ही होगा, वो तो हर जगह ही सेम होगा, ग्रे। तो यहाँ भी येलो कलर कंपाउंड ब्रेक डाउन कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है सनलाइट की वजह से, टूट रहा है सिल्वर में, ब्रोमीन गैस रिलीज हो रही है, और यहाँ जो येलो कलर है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ग्रे कलर में, बिकॉज यहाँ सिल्वर टूट के अलग हो रहा है, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक क्यों, बिकॉज हम क्या पास ऑन करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो यहाँ देखो हमारा फेवरेट सॉल्वेंट H2O, हमने क्या किया, H2O पानी लिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, तो ये टूट जाएंगे दो गैसेस में जिनसे ये मिलके बना ऑफ कोर्स हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ भी तो देखो एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है, ब्रेक डाउन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक। अच्छा सेकंड वाले में NaCl, सोडियम क्लोराइड। यस, जो नमक हम घर पे खाते हैं ना, सॉल्ट, वही टाटा सॉल्ट तुम लोग की घर वाली, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें भी जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये टूटेगा सोडियम में और क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा। तो यहाँ भी सिंगल कंपाउंड था और ये किस में टूट रहा है, दो प्रोडक्ट में। सिंगल reactant is converting into two product with the help of electricity. So this also is an example of electrolytic decomposition, ठीक है। ओके, तो अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा जो सोडियम क्लोराइड है ये तो सॉलिड के फॉर्म में होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, हमारे किचन में होता है, सबके किचन में होता है, ठीक है। तो ये कैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। तो बच्चों हम लोग सोडियम क्लोराइड में क्या करते हैं ना, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं उसका, ठीक है। मतलब सॉल्ट का हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन कराते हैं, ठीक है। और तब जाके हमें क्या मिलता है, सोडियम और क्लोरीन गैस, ठीक है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके चिल्ड्रन, जो अब हमारे बाद वाले तीन रिएक्शंस बचे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, वो हम करेंगे इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। आई होप कि जो दो रिएक्शन हमने पढ़ा उसको मैंने इजियर और अंडरस्टैंडेबल वे में आपको प्रेजेंट किया, आपको समझाया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ओके देन, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।